dear students, good afternoon. Welcome back for the next lecture. Today I will tell you domains of interest in physics. तो फिजिक्स में जो भी हम पढ़ते हैं वो दो डोमेन्स में मोस्टली पढ़ते हैं. First is the macroscopic domain and the second one is the microscopic. Macroscopic domain means हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पढ़ते हैं. Microscopic, as the name indicates, micro means very small. तो हम छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं. The microscopic domain includes the study of phenomena involving objects of finite size on terrestrial scale. जैसे जमीन के ऊपर जो भी चीजें हमें नजर आती हैं, देख पा रहे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, कार, बुलेट, इनकी मूवमेंट तो टेरेस्ट्रियल स्केल से लेके एंड इवन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल. सन, मून, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, हाउ द होल यूनिवर्स इज working and how the movements are there occurring in the celestial bodies. तो इन सब चीजों के बारे में हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं. And this makes up the classical physics. इसे हम फिजिक्स के मेनली टू पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं. तो ये हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं. It means what is the classical physics? Classical physics is the physics that deals with the objects, the movement of objects or the objects which has a microscopic size, the bigger one. उनके बारे में पढ़ते हैं. And most of it was developed up to the year 1990. तो 1990 से पहले ही ये सारी फिजिक्स ज्यादातर डेवलप हो चुकी थी. I mean to say classical physics is the old physics. It doesn't mean कि ये अभी true नहीं है. Yes, it is true. ये अभी भी चल रही है. But it holds perfectly over the microscopic domain. बड़ी चीजों पे. It may fail to explain the movement of electrons or some small particles. So I will explain later on. But what is classical physics? Classical physics is the physics which is developed before the year 1990. It is most of it is developed before it. And it deals with the microscopic bodies. And what it covers, classical physics में हम क्या क्या पढ़ते हैं? Mechanics. Now see, mechanics. The whole 11th class के syllabus में you will find mechanics. Even in 12th class also. So what is mechanics? Mechanics means the study of bodies in motion. Now which bodies? Obviously the macroscopic bodies. तो बड़ी बड़ी बॉडीज के बारे में जो मोशन है, हाउ द बॉल मूव्स, कार मूव्स, बुलेट मूव्स, उसके बाद मैकेनिक्स. मैकेनिक्स के भी आगे दो यू कैन से पार्ट हो सकते हैं. स्टैटिक्स में हम बॉडीज एट रेस्ट पढ़ते हैं. काइनेमैटिक्स में हम बॉडीज इन मोशन पढ़ते हैं. This is mechanics. तो आपको जो 11th क्लास का सिलेबस है उसमें we have motion in 1 dimensions, motion in 2 dimensions, motion under gravity, rotational motion, gravitation. So all these comes under mechanics. Then we have thermodynamics. See, thermo means heat, dynamics. There is a difference between kinematics and dynamics. Kinematics is also deals with the motion. Dynamics also deals with the motion. What is kinematics and what is the main difference in dynamics? In kinematics, we don't study the cause behind the motion. Body क्यों चल रही है? जैसे for example, I will take the example of car. The car is moving. हम ब्रेक लगाएंगे तो कितनी देर के बाद रुक जाएगी, हम एक्सेलरेट करेंगे तो कितनी स्पीड बढ़ जाएगी. ये सब कुछ हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं. बट what is inside the car which make the car to move?
कार चल क्यों रही है, क्या है उसके अंदर, इंजन है, कौन सा इंजन है, इंटरनल, पेट्रोल, डीजल, कौन सा, विच टाइप ऑफ इंजन इज देयर, हाउ द इंजन्स वर्क, हीट इंजन्स आर देयर. So in that we study the cause behind the motion, why the body is moving. That deals with the dynamics. तो dynamics में हम motion तो पढ़ते ही हैं, but we study also the cause behind the motion. There's a transfer of heat. How heat transfers? Everyone knows heat transfers from a body at higher temperature to a body at lower temperature. This is the cause behind the transfer of heat, and it is studied in dynamics. Thermodynamics. Thermo means heat. Dynamics means motion. इसमें heat के बारे में हम पढ़ते हैं कि how heat transfers from one body to another body. इसमें हम heat engines पढ़ते हैं. Heat engines मतलब internal combustion engine, external combustion engine. External combustion engine हमारे कम होते हैं आजकल, लेकिन ये पहले वाले इंजन. एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो बाहर बर्न होता है आउटसाइड द बॉडी. जैसे स्टीम इंजन्स बड़े बड़े देखे होंगे, साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं. आजकल नहीं होते स्टीम इंजन्स, जिसमें धुआं देखा होगा ट्रेन में. स्टीम इंजन्स होते हैं वो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, कोयला हम बर्न करते हैं, उसमें कोयला बर्न करते हैं और उसमें बॉयलर होता है, उसमें पानी बॉयल होता है. तो कोयले से हम पानी को बॉयल करते हैं, बॉयल होने से पानी से स्टीम निकलती है और स्टीम से हम पिस्टन को मूव करवाते हैं. तो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन इज दैट इन विच द कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द पिस्टन. इसमें भार हो रहा है, साइज में बड़े बड़े होते हैं. वी हैव इंटरनल कंबशन इंजन. इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है, पिस्टन के अंदर होता है. पिस्टन मीन सिलेंडर. आपने देखा होगा बाइक के अंदर सिलेंडर लगा होता है, पिस्टन होता है. अगर इस पिस्टन और सिलेंडर के अंदर कंबशन हो रहा है, जैसे पेट्रोल एंड डीजल. इंटरनल कंबशन इज ऑफ टू टाइप्स, पेट्रोल एंड डीजल. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि 10-15 साल पहले these type of engines are in 10th क्लास, उसमें पढ़ाया जाता था पेट्रोल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन क्या होता है. At present, ये तो अभी 11th पे भी नहीं. But these are the part of thermodynamics. What we study in thermodynamics? Laws of thermodynamics, how the heat flows. In this, the main important thing is the heat engine. There are two types of heat engines. Internal combustion engine is petrol and diesel. External combustion engine is steam engine, जो आजकल outdated हो गए. फिर we have a Carnot heat engine, जो कि आइडियल इंजन है. तो you will study all these things. फिर हीट इंजन्स में क्या होता है, हम हीट से हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे मूवमेंट पैदा होता है. इसी के जस्ट ऑपोजिट होता है रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेटर और यू कैन से एसी or you can say heat pump. Heat pump इसके ऑपोजिट फिनोमिना में चलते हैं. ये क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जो अंदर का उसका जो कैबिन होता है, अंदर कैविटी, उसके अंदर जिसमें हम सामान रखते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें से हीट उठा के बाहर सराउंडिंग्स में फेंक देते विद द हेल्प ऑफ ए कंप्रेसर. तो उसमें से हीट लोअर टेम्परेचर से कहां भागती है, कहां फेंकते हैं, हाई टेम्परेचर में. वैसे हीट अपने आप कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. इट्स अ कॉमन फिनोमिनन, हाई टू लो. बट अगर आपको हीट को फेंकना है, थ्रो करना है या मूव करवाना है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, उसके लिए भी आपको बाहर से काम करवाना पड़ेगा. उसके लिए वी हैव कंप्रेसर्स. We have compressors inside refrigerators. We have compressors inside AC, air conditioners also, which pump the heat out. एक कैविटी के अंदर से हीट को एक लो टेम्परेचर से बाहर की तरफ फेंकते हैं, जो बाहर ऑब्वियसली टेम्परेचर हाई होता है. This is thermodynamics. So we have
lot of things to study in thermodynamics. It is in 11th. ये भी 11th में है, ये the part of it. Then we have electrodynamics, dynamics. ये आपने थोड़ा सा 10th में भी पढ़ा होगा. Electro means charge, dynamics means again why the charge moves and how it moves. इसमें आपने पढ़ा होगा electrodynamics में क्या पढ़ा होगा आपने? Current electricity तो पढ़ा ही है आपने. Current, what is current electricity? Rate of flow of charge. ये आपने 10th में पढ़ा है. 12th में भी पढ़ेंगे electrodynamics. 12th में in addition to this electrodynamics we have electrostatics. 12th में electrostatic, जिसमें electro means charge, statics means rest. तो इसमें हम charges at rest पढ़ते हैं, इसमें हम charges in motion पढ़ते हैं. तो electrodynamics का ये दोनों ही पार्ट है, रेस्ट में और मोशन में भी. This is in 12th. Then we have optics. Optics भी आपने 10th में पढ़ा. Optics means study of light and optical devices. इसमें आप lenses, mirrors, telescopes, microscopes ये सब पढ़ते हैं. This is optics. आपने 10th में पढ़ा. You have atmospheric refraction, so many things, rainbow, dispersion. तो optics में आप 12th में क्या पढ़ेंगे? You will study ray optics. 12th में है and wave optics. But it is a part of the syllabus. 12th. कुछ आपने ray optics के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा, छोटी क्लासेस में पढ़ा. रे ऑप्टिक्स में क्या होता है? Which study the light is moving in a straight path and moves in a rectilinear propagation of light. Straight चलती light, इसमें ये पढ़ते हैं. Lenses, mirrors, prisms, and total internal reflection also. There are so many topics in this ray optics, and so you are familiar with these topics because this is a classical physics. तो क्लासिकल फिजिक्स जो है आप पूरा 11th और 12th में जो भी पढ़ेंगे आप क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ेंगे. मॉडर्न फिजिक्स आप ना 11th में पढ़ेंगे ना 12th में पढ़ेंगे. तो वंस अगेन सी है फिजिक्स के कितने डोमेन्स हैं? वी हैव 2 डोमेन्स, मेनली वी हैव 2 डोमेन्स. मैक्रोस्कोपिक, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पढ़ते हैं. बड़ी बड़ी मीन्स विच इज विजिबल टू यू, और बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल स्केल. ये इसके कुछ पार्ट्स हैं. मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स. ये सब 11th 12th में आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे. देन कम टू द माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक मींस वेरी स्मॉल, व्हिच इज नॉट विजिबल टू योर नेकेड आईज. उन पार्टिकल्स के बारे में. सी द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिनोमेना इन्वॉल्विंग molecules. You cannot see the molecules with your naked eye. This is molecules के बारे में पढ़ेंगे. Atoms, which are smaller than molecules. Atoms के अंदर घुस रहे हैं, देखो घुसते आ रहे हैं. Atoms के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस. बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? We have protons, neutrons. ये मैंने पहले ही बताया था. प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स किसके बने होते हैं? क्वार्क्स. Electrons are not made up of quarks. सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही किसके बने होते हैं? क्वार्क्स. इसके बारे में आपको 12th में बताया जाए. देन वी हैव ए गॉड पार्टिकल. डेफिनेटली गॉड पार्टिकल कुछ 1990s में आया है, तो ऑब्वियसली दिस इज मॉडर्न फिजिक्स. एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स. देयर आर सो मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सो मेनी. हाइड्रॉन्स, बोसॉन्स, पायॉन्स, कायॉन्स. देयर आर सो मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स which are invisible to you. उनके बारे में पढ़ेंगे. And this makes up modern physics. So most of it was developed after 1900. तो मैं आज ये तो आप पढ़ ही लेंगे 11th और 12th में, कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे. ये एक हायर क्लासेस की बात है. तो थोड़ा सा मैं आपको आज इसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये आप either you will study in graduation or post graduation or in research work. तो इसके क्या पार्ट्स?
we have quantum mechanics. See here. तो आई एम रबिंग इट, ये आपको पता लग गया होगा. तो आज मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताऊंगा. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आप कभी आज के बाद कभी नहीं पढ़ेंगे. हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, कहीं इंजीनियरिंग करने जाएंगे, अगर आपकी स्ट्रीम वैसी होगी तो तब आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ठीक है. और आज जो भी फिजिक्स चल रही है वो क्वांटम मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर चल रही है. मॉडर्न फिजिक्स में वी आर डूइंग न्यू रिसर्च. तो आप भी कोई भी रिसर्च करेंगे इन फ्यूचर तो आप ऑब्वियसली मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर ही करेंगे. तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स. मैं ज्यादा पार्ट्स नहीं लूंगा इसके. आई विल टेक ओनली 2 थ्योरीज और थ्योरेटिकल फिजिक्स. Theoretical physics, it was first of all given by Albert Einstein. क्वांटम मैकेनिक्स ये सब फिजिक्स 1900 के बाद की. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक क्वांटम मैकेनिक्स. सी क्वांटम मैकेनिक्स तो वही है, मूवमेंट ऑफ, हम स्टडी कर रहे हैं किसी चीज की मूवमेंट को. Quantum. Now what do you mean by quantum? Quantum means a packet, a discrete quantity, a single packet, a single unit. Quantum. Quantum mechanics. Now, मैं आपको इसके सीधा इसके आउटकम्स के बारे में बताता हूँ. क्वांटम मैकेनिक्स ने आज तक क्या क्या किया है और ये फैक्ट है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन या फिक्शियस नहीं है. It is proved. जैसे मैंने कल बताया था, God particle, the Higgs boson. It is a particle. This particle क्या कौन सा particle? It's a basic particle which is present everywhere in living beings and non-living beings. तो सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स की देन जो लेटेस्ट है वो कौन सी है? तो क्वांटम का मतलब क्या है? पैकेट. सबसे पहले मैंने आपको बताया द हिग्स बोसॉन. आई एम नॉट राइटिंग, जिसको आप पहले क्या कहते थे, द गॉड पार्टिकल. थोड़ा कैची है, थोड़ा एक्साइटिंग भी है, बट इट्स नेम इज हिग्स बोसॉन, विच इज द फंडामेंटल और यू कैन से बेसिक पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर. कितना भी मैटर, लिविंग और नॉन. तो मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द आउटकम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. दिस इज द फर्स्ट आउटकम, लेटेस्ट, द हिग्स boson. Boson is a particle and Higgs is a scientist's name. Boson is a type of elementary particles. The Higgs is the name of the scientist and this is called the God particle. मैंने बताया था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा बताया तो स्विट्जरलैंड में कैसा, इट्स ए बिग 60 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस होगा इसका, अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस है और अबाउट 150 मीटर बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ. 60 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस में टनल है, टनल जस्ट लाइक दिस. 60 किलोमीटर का सर्कमफ्रेंस है, उसके साथ छोटी छोटी और भी हैं, छोटी छोटी. अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 12th में आपको समझा सकते हैं. इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं बड़ी फास्ट और फिर हिट करते हैं और पार्टिकल्स टूट जाते हैं और टूटने के बाद हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. दिस इज लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, स्विट्जरलैंड में है. 60 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट इसका सर्कमफ्रेंस है और ग्राउंड लेवल से 150 मीटर्स डाउन है. हाँ, एक बार इसको एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम इस गॉड पार्टिकल के बाद भी, लेकिन साइंटिस्टों ने इसको बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने ऑब्जेक्ट किया. क्योंकि उसका ये भी हो सकता था, अगर द एक्सपेरिमेंट फेल्स तो अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, एक्सप्लोजन हो सकता है, अर्थ खत्म हो सकती है. और साइंटिस्टों को भी इसके बारे में पूरा 100% श्योरिटी नहीं थी इसकी सेफ्टी की. या 99% श्योर, बट 1% फिर भी था. इसलिए इन्होंने इसे 2008
में एक एक्सपेरिमेंट करना था जिसको बीच में ही बंद कर दिया गया. Second one is, the packet of light. Packet of light. ये रोशनी. Any light. Sunlight. This bulb की light. माचिस की तीली की लाइट. कोई भी लाइट. तो आप सोच रहे हो लाइट क्या है? Light is a wave form or a particle form. So light has a packet of light. Is called photon. See? किसी पुराने लोग किसी को बताएंगे, इसको पता नहीं होगा कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स में होती है, जस्ट लाइक बुलेट्स. लाइट मूव्स इन ए पार्टिकल फॉर्म एंड इट हैज ए वेव नेचर आल्सो. एक छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं. इसके बारे में पढ़ेंगे आप 12th में. इसके बारे में पढ़ेंगे 12th में. एक पूरा चैप्टर है इसके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें फोटोन का एल्बर्ट आइंस्टाइन, इट वाज गिवन बाय Albert Einstein, the packet of light. तो लाइट छोटे छोटे कणों की बनी है और एक छोटे कण को क्या कहते हैं? फोटोन. 12th में पढ़ेंगे. The packet of electric field or the charge. मैं पैकेट लिख रहा हूं. यू कैन राइट क्वांटम. क्वांटम एक अच्छा वर्ड. क्वांटम का मतलब तो आप समझ ही गए क्या होता है. क्वांटम का मतलब एक पर्टिकुलर थिंग विच इज अ डिस्क्रीट क्वांटिटी. इट्स अ डिस्क्रीट. डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में आपको समझ में आना चाहिए. कॉन्टिन्यूस जैसे ये लाइन, इट्स अ कॉन्टिन्यूस. जैसे ये लाइन, इट्स कॉन्टिन्यूस. व्हाट इज दिस? डिस्क्रीट. छोटे छोटे टुकड़ों में बनी. और दुनिया में कोई भी चीज कॉन्टिन्यूस नहीं है बेसिकली. मैंने अभी बताया क्लासिकल फिजिक्स क्या करती है, बड़े माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखते हैं. इसको अगर माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो आपको लाइन ही नजर आएगी, मैक्रो. लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, यू विल फाइंड इट इज मेड अप ऑफ मेनी मेनी पार्टिकल्स. इसी लाइन को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर बैठ के देखेंगे, जूम करके देखेंगे, यू विल फाइंड इट दिस लाइन इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो क्वांटम दिस मॉडर्न फिजिक्स यही काम करती है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में घुस के देखती है. तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हुआ? द क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन. द क्वांटम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. दिस इज इन 12th. चार्ज. चार्ज का क्वांटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. हमने पढ़ा होगा चार्ज बॉडी, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है. The charge is also found in small packets and that is called electron. The quantum of sound. बताओ साउंड का क्या होगा? क्वांटम ऑफ साउंड क्या होना चाहिए? इट्स वेरी सिंपल. फोनॉन. सी, फोन. सभी फोन करते हैं. मोबाइल का जमाना है. फोन, टेलीफोन. Phonon. That phone word comes from phonon. Phonon is a quantum of sound. इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे आप कहीं भी. Quantum of magnetism. Yes. आप सोचेंगे मैग्नेटिज्म, मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट, इसकी प्रॉपर्टीज में मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्लास. उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. स्मॉलेस्ट वन इज कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन. बोर मैग्नेट्रॉन, यू भी इसका सिंबल होता है. दिस इज इन 12th. ये 12th में है, ये 12th में है. आप बोल रहे होंगे सर 12th में है तो 11th में क्यों बता रहे हैं? मुझे मालूम है 12th में आपको ये बता तो देंगे, लेकिन बेसिक पता नहीं होगा. दिस इज पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. The quantum of light means photon. Quantum of charge is electron. Quantum of sound is phonon. Quantum of magnetism is Bohr magnetron. The quantum of gravitation. See, gravitation is a universal thing. But इसके लिए साइंटिस्ट अभी पूरा पहुंचे नहीं है. ग्रेविटॉन कह रहे हैं, बट
It is under research. Still it is under research. Graviton. 100% sure नहीं. तो gravitation के लिए we have a graviton. So these are some outcomes of quantum mechanics. जिसमें quantum mechanics में हमें बताया गया quantum physics you can say. Basically quantum mechanics is a part of quantum physics. So basically it's the outcome of quantum physics. Higgs boson, photon, electron, phonon, Bohr magneton, graviton. अब देखें सभी on में end हो रहे. Boson, these all ends with on. Proton, electron, neutron. So most of the particles end with on. Pions, kaons, xenons. These are element particles. So this is the outcome of quantum mechanics. तो क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ गया होगा. हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में किसी भी चीज के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखते हैं. नाउ दिस इज द आउटकम ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. फर्स्ट वन समझ में आ गया. आई विल टेक द नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट तो आपको यकीन ही नहीं होगा. ये तो फिर भी थोड़ा आप हजम कर लेंगे एट प्रेजेंट. नहीं ठीक है सर बोल रहे हैं तो होगा. सही बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोल रहे हैं. लेकिन ये तो आप मानेंगे नहीं मैं पढ़ाऊंगा अभी. एल्बर्ट आइंस्टाइन जब बोला था तब नहीं माना तो आप कहां मानेंगे. तो सी theoretical physics. Now see why it is called theoretical physics, क्योंकि it is very difficult to prove it practically. लेकिन आज हम प्रूव कर चुके हैं तो इसलिए हम मान रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही है. theoretical physics ध्यान से देखना इसको. theoretical physics का एक पार्ट है theory of general theory और basic theory of relativity. Spelling okay. Relativity. It is given by Albert Einstein. And further बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी चीजें. लेकिन बड़ी अफसोस की बात है जब ये थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी तब किसने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि he was not able to prove it practically. आज तो प्रूव हो चुके. तो व्हाट इज थ्योरेटिकल फिजिक्स? तो ये भी बहुत जरूरी चीज है. मैंने कल बताया था फिक्शंस शुड बी देयर. फिक्शंस के बाद आप थ्योरी बनाते हैं और थ्योरी के बाद उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए यू डू अ प्रैक्टिकल. एंड समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू डू प्रैक्टिकल एट दैट टाइम, क्योंकि लाइफ स्पैन आदमी का कम ही होता है. तो वो जो थ्योरीज होती हैं वो रहती हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन. तो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे होते हैं उस थ्योरी पे वर्क करते हैं. दे ट्राई टू डू प्रैक्टिकल्स ओवर इट कि क्या ये थ्योरी सही है कि नहीं. तो नाउ इट इज प्रूव ट्रू. मैं आपको बताता हूं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या है. सबसे पहले तो मैं यही पूछ लेता हूं. सबसे पहले आप बच्चे लोग मुझे बताएं, छोटी क्लासेस में पढ़ा हो मास. व्हाट इज मास? व्हाट इज मास? मास के बारे में सबको पता है. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी. जैसे मेरा मास 75 kg, किसी का कुछ होगा. तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन. तो मास, यू नो मास, quantity of matter contained in a body. My question is that, for example, I have a bullet. बुलेट का मास कितना होगा? मान लेते हैं स्मॉल बुलेट 10 grams. तो वो चल रही है. अब बोलो कितनी स्पीड से चल रही है? कितनी स्पीड चलती होगी बुलेट? एक सेकंड में कितने किलोमीटर चले जाती है? एट द मोस्ट एक सेकंड में 10 किलोमीटर पर सेकंड. इससे ज्यादा नहीं चलती होंगी. यहां से गोली मारी और एक सेकंड में 10 किलोमीटर पहुंच गई. इतनी चलती होंगी. तो क्या उसका मास बढ़ेगा या उतना ही रहेगा या कम होगा? तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा मास इज ए कांस्टेंट थिंग. पढ़ा होगा आप लोगों ने. मास डजंट चेंज. मून पे चले आओ मास डजंट चेंज. अर्थ पे रहो मास डजंट चेंज. कहीं भी चले आओ मास डजंट चेंज. इट्स ट्रू, मास डजंट चेंज, बट mass changes with speed. See here?
mass of a body changes with speed. ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, mass of a body changes with speed. अरे भाई सही है, गलत नहीं. provided the speed of the body, बॉडी कह रहे हैं, बॉडी आपको लगता है थोड़ी बड़ी बॉडी होती है, आप पार्टिकल कह सकते हैं क्योंकि पार्टिकल लगता है कि छोटा होता है, एक ही बात है. मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद स्पीड provided the speed of the body or a particle is comparable to the speed of light. Now, what is the speed of light in vacuum? तो speed of light को हम सिंबल रिस्पेक्टफुली सिंबल क्या देते हैं, c, and it is, वैसे तो मुझे पता है 299792458 मीटर पर सेकेंड. This is the exact speed of light in vacuum, in free space. 299792458 मीटर. आप सोचे तो याद करना, बिल्कुल डेफिनेटली इसको याद करना, ये आपको अगले लेसन में आएगा, इसी लेसन में आ जाएगा. Approximately you can take it is 3 into 10 raised to power how much, 8 meter per second. It is 8, 3 into 10 raised to power 8 meter per second. थोड़ा अंदाजा, 3 into 10 raised to power 8 meter per second कितना होता होगा, थोड़ा अंदाजा. This is equal to 3 lakh kilometer per. So what is the speed of light? 299792458 meter per second in vacuum, or you can say in air. Air is approximately a vacuum. Or you can say speed of light is 3 to 10 raised to power 8 meter per second. Or you can say it is 3 lakh kilometer per second. Now why I am telling you this 3 lakh kilometer per second? Once in an interview, an interviewer has asked me the speed of light. तो मैंने सोचा मैं एग्जैक्ट बता देता हूं, तो मैंने ये बोला स्पीड ऑफ लाइट इज दिस इन वैक्यूम. तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, शायद उनको नहीं मालूम होगा ये एग्जैक्ट फिगर. फिर मैंने बोला ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. थोड़े वो बुजुर्ग थे तो फिर भी थोड़ा सा ऐसे हेजिटेंट से थे. फिर मैंने सोचा, फिर मैंने लास्ट में बोला यस इट इज 3 lakh kilometer per second. Yes, this is. So what I want to say, कि this is a good estimation. आप किसी को बता सकते हैं कि what is the speed of light in vacuum. So although all these things are the same, but एक ऐसे this gives a big understanding कि एक सेकंड में जो फोटोन है वो कितने किलोमीटर चले जाता है, 3 lakh किलोमीटर एक सेकंड में चले जाता है एक फोटोन. To see how much the speed of light is, 3 lakh kilometer per second, or approximately this. और ये भी याद कर लें. This is very important. It will come in this lecture, this lesson. तो now see, अगर एक बॉडी, एक बुलेट या कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो चल ही नहीं सकती. क्यों नहीं चल सकती मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो लेट 3 लाख किलोमीटर नहीं चल रही है, 2 लाख चल रही है फॉर एग्जाम्पल, 2 lakh या 2.5 lakh के अराउंड चल रही है या 1 lakh चल रही है, इट्स ओके, चलेगा. तो इट्स अ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. रिलेटिविटी मींस इन रिलेशन टू द स्पीड ऑफ लाइट. ये पूरी थ्योरी तभी एप्लीकेबल है जब पार्टिकल्स बहुत ग्रेट स्पीड से चले. अब कितनी स्पीड होनी चाहिए उस पार्टिकल की, comparable to the speed of light, relations to the speed of light. It is in relation or comparable to the speed of light. It cannot be more than 3 lakh, but it can be approximately nearer to the 3 lakh. 50,000 kilometer per second चले, it's okay. 1 lakh चले, it's okay. 2 lakh तो बहुत ही अच्छा है. So what I want to say, this theory only applicable to those things which are moving with the speed comparable to the speed of light. तो now मैं आपको बुलेट का एग्जांपल ले रहा था, जहां कोई पार्टिकल, छोटा पार्टिकल है जिसकी स्पीड काफी ज्यादा है, तो क्या होगा उसके मास का, तो मास बढ़ जाता है. द मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विद
speed, provided the speed of the body, or you can say particle, is comparable to the speed of light. So I'm giving you a very important formula, very important formula. M equals to m naught divided by under root 1 minus v square upon c square. Very important formula, and सिर्फ 11th में ही नहीं यूज है, 12th में भी है. और this is the outcome of Albert Einstein at that time, and no one believes it. Theoretically आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो जो भी पुट करेंगे आंसर मिलेगा. What is m here? Relativistic mass. Relativistic, बच्चों उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आगे कहीं भी पूरी फिजिक्स में 11th में नहीं आएगा, कहीं एक दो बार आएगा, उसके बाद नहीं आएगा. 12th में भी एक दो बार आएगा. What is m? Relativistic mass. What is relativistic mass? Mass of a body moving with relations to the speed of light. Relativity. अगर आप किसी के रिलेशन में बात करना चाहते हैं तो आप obviously एक छोटी चीज का बड़े के साथ, बहुत बड़ी चीज के साथ रिलेट नहीं कर सकते. एक बॉल बेरिंग का रिलेशन सन के साथ तो नहीं कर सकते आप. सेम here. तो relativity means it is relation with the speed of light or related to the speed of light. तो चलते हुई बॉडी का रिलेटिविस्टिक मास, और यू कैन से मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, प्रोवाइडेड, कितना फिर से बार बार लिखना होगा, प्रोवाइडेड इट इज मूविंग विद स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट. व्हाट इज एम नॉट? रेस्ट मास. जब वो रुका था उसका मास कितना था? दैट इज कॉल्ड रेस्ट मास. एम नॉट इज रेस्ट मास. What is V? Speed by which the particle is moving. The particle is moving. अब ये जो स्पीड है ये वो 10 किलोमीटर पर सेकंड, 15 किलोमीटर पर सेकंड नहीं है. It should be more than 50,000 किलोमीटर पर सेकंड. तो आप ये फॉर्मूला लगाएं. And what is C? C तो पता ही है आपको, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. Speed of light in vacuum. So if you use this formula, you will find mass increases with speed. So this was the outcome of theory of relativity. This is the first outcome. तो theory of relativity तभी applicable है जब एक बॉडी बड़ी ग्रेट स्पीड से चलती है, तो उसकी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, और चलते चलते उसका मास बढ़ता जाता है. जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है उसका मास भी बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है. तो मास इंक्रीजेस विद स्पीड. दिस इज द आउटकम ऑफ दिस. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. तो मास बढ़ता है स्पीड के साथ. दिस इज फर्स्ट. देयर आर सो मेनी थिंग्स. वी हैव ट्विन पैराडॉक्स, जो मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया है, लेक्चर लंबा हो गया. ट्विन पैराडॉक्स आप पढ़े, किसी दिन मूड होगा तो बता दूंगा. लेंथ कंट्रैक्शन, ये समझने वाली बात है. ट्विन पैराडॉक्स, ट्विन लेंथ, टाइम डायलेशन, इसके पहले आना चाहिए. टाइम डायलेशन, टाइम स्लो हो जाता है. बता देता हूं थोड़ा सा. टाइम, अगर आप एक स्पेस शटल में बैठे तो उस स्पेस शटल की स्पीड कितनी होनी चाहिए कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट? यू विल फाइंड उस स्पेस शटल में जब आप बैठेंगे तो जो टाइम है वो एज कंपेयर टू आउटसाइड स्लो होगा. स्लो. तो टाइम स्लो होता है विद स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ट्विन पैराडॉक्स, मैं आपको ट्विन पैराडॉक्स का बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ट्विन्स. ट्विन्स इसलिए ले रहे क्योंकि दे आर बायोलॉजिकली सेम. माना जाता है कि उनके बिल्कुल बायोलॉजिकल मेकअप बिल्कुल सेम होता है, आइडेंटिकल ट्विन्स. तो एक ट्विन को लिया हमने, वो अर्थ पे फॉर एग्जाम्पल 30 इयर्स की एज है. एक ट्विन को लिया, उसकी टाइम भी अर्थ की एज क्या थी, 30 इयर्स ही थी.
इस ट्विन को क्या इसको क्या किया, स्पेस में भेज, स्पेस शटल में बैठाया और स्पेस में भेज दी। किसमें? मैं स्पेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतनी स्पीड में मूव करना अर्थ के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है नहीं। स्पेस शटल में बैठाया और स्पेस में भेजा, और स्पेस शटल की स्पीड कितनी है? चलो ज्यादा नहीं तो 2 लाख लगा लो, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और 1 लाख 2 लाख, विच इज नॉट पॉसिबल। सी, इट इज नॉट प्रैक्टिकली ट्रू, यू कैन नॉट प्रूव इट, क्योंकि कोई भी स्पेस शटल इतनी स्पीड में चल ही नहीं सकती, बना ही नहीं सकते हम। लेकिन फिर आप बोलोगे सर ये हमने प्रूफ कैसे कर दिया? यस, इट इज प्रूफ नाउ, साइक्लोट्रॉन में। तो स्पेस शटल के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटे से पार्टिकल को तो एक्सलेरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको तो हम 2.5 लाख 3 लाख की स्पीड में भेज सकते हैं, 3 लाख से कम भेज सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दीज आर 2 ट्विन्स, ये अर्थ के ऊपर है, ही इज ऑन अर्थ, और इसकी एज कितनी है एट प्रेजेंट? 30 इयर्स। इसी के दूसरे भाई को क्या किया, 30 इयर्स की इसकी एज थी अर्थ पे, स्पेस शटल में बैठाया और स्पेस में भेज दिया, और स्पेस शटल की स्पीड कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर, और घूम रहा है उधर 20 इयर्स के लिए घुमाया, 20 इयर्स एज कंपेयर टू अर्थ। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी जब वो आएगा? तो 50 इयर्स। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला है, बट अभी मैं दे नहीं रहा हूं, कहीं 11-12 में यूज नहीं होता, इसके जैसे ही होगी। तो उसके हिसाब से इसकी एज कितनी होगी? 50 इयर्स। तो इसकी एज हो सकता है जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो स्पेस में 20 ईयर कितनी हो जाएगी? हो सकता है 10 इयर्स हो जाए, तो कैलकुलेशन पे है, प्लस 10 तो कितनी होगी? 40 इयर्स। बिल्कुल बायोलॉजिकली भी ये बूढ़ा हो चुका होगा 50 इयर्स का, ये थोड़ा सा यंग होगा 40 इयर्स। हो सकता है ये स्पेस में 30 इयर्स रही, तो ये कितना हो जाएगा? 60 इयर्स का। तो ये हो सकता है 50 इयर्स का ही हो या 45 का हो, ऑल डिपेंड्स अपॉन द कैलकुलेशन। तो व्हाट इज ट्विन पैराडॉक्स? पैराडॉक्स किस लिए? मतलब आप मानेंगे नहीं, अजूबा। तो जो अर्थ पे जो भाई है वो बायोलॉजिकली एज्ड हो गया होगा एज कंपेयर टू द वन हु इज इन स्पेस शटल विच इज मूविंग विद स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब अगर आप एक स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चलते हैं तो आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और फिर मैं आ रहा हूं, मैंने एक बुक पे पढ़ा था ब्रह्मा की उम्र कितनी होती। वी थिंक ही इज मूविंग in space with the speed of light. It's a hypothetical thing. We don't believe in that, but it is written in the book. तो मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि हाँ उस टाइम लोगों ने सोचा होगा, इट्स ट्रू, ऐसा हो सकता है कि, और हमारे हजारों साल का उनका एक दिन होता है, तो इट मीन्स उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती होगी। इट इज ट्रू। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऐसा आपने देखा होगा, क्रिएटर्स, डिस्ट्रॉयर्स एंड दैट। तो उनकी एज प्रोसेस हमारे 1000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स का उनका एक दिन होता है। मैंने एक बुक में पढ़ा था, तो आई गॉट इट कि ये थ्योरी बहुत एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले की थ्योरीज हैं जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने बुक में पढ़ा। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूफ किया, यस इट इज देयर। इफ यू मूव इन स्पेस विद अ वेरी ग्रेट स्पीड, द एज प्रोसेस स्लोज डाउन, एंड इट इज ट्विन पैराडॉक्स। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, बट अगर ये प्रूफ हो सकता है तो all these things can be proved. Length contraction, कामी का लेंथ थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइम डायलेट हो जाता है। ट्विन पैराडॉक्स उसका कंसेप्ट है। स्पीड, मास, स्पीड के साथ मास बढ़ जाता है। तो all these things come under theoretical physics. And what is theoretical physics? Which is just in theory. Practically आस्ते आस्ते प्रूव हो रही, क्योंकि इतनी स्पीड पे चलना एक बड़ी बॉडी को थोड़ा मुश्किल होता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू फॉर टुडेज लेक्चर। मास increases with speed provided the speed of the particle is comparable to the speed of light। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप स्पीड भी कीजिएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड पुट करके देखें मास कितना बढ़ा था, पुट करके देखें, you will find it mass will
increase 2. पूरा करने की जरूरत नहीं, 2 का स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर, 4/9. That's all for today. Thank you very much.